Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2, Kings, Farmers and Town. My dear student, yesterday we discussed about your topic strategies for increasing production. In that topic, we studied about studies increasing production that in the northern part of India it means Ganga Valley and the southern part of India it means Kaveri Valley. It was a very fertile land. The great alluvial soil deposited by these rivers. So fertility rate of this soil is very much. Kaveri Delta is very famous in Sangam literature. Also their importance was precious. It admired by the Vedic sagas also. And as far as the matter of Ganga Valley, there is no need to explain the importance of Ganga Valley is very much. So other thing is that which is very important which you have to point out, that was iron. The invention of iron, iron की खोज हो जाने का discovery, कहीं ज़्यादा अच्छा है discovery of iron. It was very helpful for the peasants that they uses iron in a very huge amount in agriculture sector. The iron plugs here and the other agriculture equipment which was made or which was used for making the agriculture tools and which is very helpful to increase the production. Transportation also played a very important role. Transportation is used for paddy cultivation in area where water is plentiful. Here seeds are first broadcast when the compelling my dear, seeds are first broadcast when the sapling have grown, they are transported in the water lodged fields. This ensures a higher ratio of survival of the sapling and higher yields. My dear, if you will read your book where the paragraph is clearly explained about the increasing production and their importance during 6th century BC2 onwards. As far as the matter of iron importance, I would inform you that it plays a very important role in agriculture sector. The iron plugs here led to growth, the agriculture productivity. Its use was the restricted to certain part of the subcontinent. Cultivators in area which were semi-arid, which as a part of Punjab and Rajasthan, did not adopt it till the 20th century, and those living in hilly tracts in the north, eastern and the central part of the subcontinent practiced hoe agriculture, which was much better suited to the tribe. My dear, as far as the land distribution, the iron agriculture tools used according to land. In the northern part of India, northeastern part of India, they use hoe instead of plow. And as far as the matter of the Rajasthan, without any hesitation we can say that the huge amount of this process was not
बड़े पैमाने पर इसका उपयोग नहीं किया गया। Another strategy adopted to increase agricultural production was the use of irrigation, though wells and tanks and less commonly canals. Communities as well as individuals organized the constructions of irrigation works. The latter usually powerful men, including king, often recorded such activities in the inscriptions. My dear, this is very interesting matter कि किस तरीके से उस समय के राजाओं ने इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया, उपज बढ़ाने के तरीकों पे काम किया। हमने आपको बताया कि उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। हल जो गहरी जुताई करता था, मिट्टी को अंदर तक जुताई करके वो उपजाऊ की योग्य उसमें उपजाऊ की क्षमता में वृद्धि कर देता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के जो फर्टाइल लैंड थे, उन क्षेत्रों में खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल लगे हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भी भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ी, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। अब माय डियर, जो ये हल का प्रयोग है, यह हल के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी। बड़े पैमाने पे खेती, बड़े पैमाने पे जो गंगा वैली थी, कावेरी वैली थी, वहां पे धान का उत्पादन होने लगा। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक थी, इसलिए वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में जो उपज उत्पादन की दर बढ़ी, इन्हीं उत्पादन की दर ने कालांतर में नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने आपको नगर के विकास और नगर के उत्थान टॉपिक जब बता रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी नगरों के विकास की बात आएगी तो सबसे पहले हमें सरप्लस प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और सरप्लस प्रोडक्शन के बाद एक आर्टिसन ग्रुप का उदय हुआ होगा, एक ऐसा वर्ग जो बिना खेती किए ही प्रोडक्शन करता हो, प्रोडक्टिव हो। और फिर आर्टिसन वर्ग के बाद वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन हुआ होगा और इनके लिए मार्केट, बाजार और बाजार के सेंटर स्थापित हुए होंगे। धीरे धीरे बाहर से व्यापारी आए होंगे और इन व्यापारियों की वजह से इन क्षेत्रों का उत्थान तेजी से हुआ होगा और ये नगरों के रूप में परिवर्तित हुआ होगा। तो इस प्रकार केवल सरप्लस प्रोडक्शन राजाओं के लिए ऐसी नहीं बल्कि एक सामान्य समाज के लिए भी जरूरी था, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया गया। लोहे के फाल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी सेमी एरिड जमीन वाले जो क्षेत्र थे उसमें लोहे के फाल लगे हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के नॉर्थ ईस्टर्न और माउंटेन एरिया में थे, हिली एरिया में थे, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदार का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ने और बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। सिंचाई के लिए कुआं, तालाब और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना पड़ता था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुएं और नहरें जैसे सिंचाई का साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे। इन्होंने अपने इन कामों के उल्लेख अभिलेखों में करवाया। माय डियर,
That is the very important things that for the agriculture purpose, irrigation play very important role. Without irrigation, you can't imagine that you can obtain the huge amount of the production, surplus production. So we have to understand that how the agriculture irrigation facilities was available by someone, किस तरीके से व्यवस्था कराई गई. If you will minutely observe about that point, you will find out that the more powerful people or more elite class people or more we can say that कि जो ऐसे लोग जो पावरफुल थे, ऐसी कम्युनिटीज जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज थी, they constructed the irrigation work. Later, usually powerful men, including kings, also open this information recorded in the inscriptions. पावरफुल लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था कराई. आइए सिंचाई की व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि कौन लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था कराई और फिर वो कैसे हुआ. So, my dear, let's come and try to understand the strategy of for increasing production. किस तरीके से इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के हम लोगों ने बात की कुछ पॉइंट्स पे. मैं उन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करूंगा. जैसे पहले मैंने कहा कि द river valley like Ganga and कावेरी, क्या मिला इनको यहां से alluvial soil, the great deposit of alluvial soil. Great deposit of alluvial soils. Second thing which is very important, iron. Iron, plugs here, and other agricultural equipment tools which made from iron. Third point is that the transportation. नहीं, third point irrigation. Wells, river, water reservoir, artificial lake, ponds, etc. And thereafter the transportation. Transportation. Dear student, if you will
learn the topic which very helpful for you to understand this strategies for increasing production. जरूरत के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी थी. रिवर वैली था, वहां पे गंगा और कावेरी के बारे में बात किया, जिन्होंने बड़ी मात्रा में एलोवेल सॉइल डिपॉजिट की. फिर मैंने आयरन की बात की. आयरन प्लस ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और अदर टूल्स का निर्माण लोहे से हुआ. कहता है कुछ क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल खूब हुआ, जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, बट कुछ क्षेत्रों में कम हुआ, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, हिली एरिया में. वहां पर लोगों ने सिर्फ का इस्तेमाल किया, कुदालों का इस्तेमाल किया. और कुछ क्षेत्रों में बहुत कम हुआ, जैसे राजस्थान और पंजाब का सेमी एरिड जोन, जहां पे 20वीं सेंचुरी तक इन लोगों ने इन इक्विपमेंट का कम प्रयोग किया. अब इरिगेशन फैसिलिटी भी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, तो सिंचाई में इरिगेशन फैसिलिटी का भी खूब प्रयोग किया गया. प्राचीन भारत में एक व्यवस्था थी, जब लोग पूर्ण कार्यों के लिए कुछ ऐसे निर्माण करवाते थे जिससे जनता के लिए अधिक से अधिक कल्याण हो सके, जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके. जैसे धर्मशालाएं बनवाना, रास्तों के किनारे पेड़ लगवाना, फलदार वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, तालाब खुदवाना, आर्टिफिशियल लेक बनवाना. हमारे इंस्क्रिप्शन से भरे पड़े हैं. बहुत सारे हमारे पास अब लेख हैं जिसमें इनकी सूचनाएं मिलती हैं. और ये काम अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता था. तो इस काम को भी धार्मिक आधार पर जोड़ के खूब सारे बनाए गए, जिससे सिंचाई सरप्लस प्रोडक्शन हुआ. और इस सरप्लस प्रोडक्शन से राज्य के लिए एक अच्छी आय प्राप्त हुई, इनकम का सोर्स बना. और इस इनकम के स्रोत ने पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया. अब आइए अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस था, रूरल सोसाइटी के बारे में देखते हैं और डिफरेंसेस पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हम. तो चूंकि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जिस हिस्ट्री के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं, वो 1000 ईयर की हिस्ट्री है. और इस 1000 ईयर की हिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि एक लंबा कालक्रम हमें देखना पड़ेगा. हमें विभिन्न समाजों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा. हमें एक डायनेस्टी का नहीं, बल्कि 1000 साल में हुए परिवर्तन और उन परिवर्तनों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है उन पे ध्यान देना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. अब जो ग्रामीण समाज था उसमें क्या विभिन्नताएं थी, ये जानना है हमें. अब आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो नए नए इन्वेंशन हुए, जो नई टेक्नोलॉजीज आई, इस नई टेक्नोलॉजीज ने एक बड़ा परिवर्तन किया, एक बड़ा बदलाव किया. और ये बदलाव था कि किस तरीके से समाज एक नई दिशा की तरफ उन्मुख हुआ. खेती में नई तकनीकी से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे. इस बात के प्रमाण मिलते हैं, इस बात के हमारे पास एविडेंस है, साक्ष्य है कि खेती से जुड़े लोग उत्तरोत्तर उनमें काफी डिफरेंस दिखाई देता है. कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कहानियों में, बौद्ध कथाओं में भूमिहीन, लैंडलेस पीजेंट्स, वर्कर्स, स्मॉल फार्मर्स और बड़े बड़े जमींदार का उल्लेख मिलता है.
पाली में लिखी गई ये जातक कहानियां सोसाइटी के बारे में विस्तार से हमें इसकी सूचना देती है। साथ ही साथ बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ, पंचतंत्र की बात हमें कि गुप्त काल में जो लिखी गई उनमें भी हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। उत्पादन से जुड़ा हर वर्ग समान नहीं था। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग हुआ है। गृहपति का मतलब क्या था? छोटे किसान जमींदारों के लिए इस शब्द का प्रयोग गृहपति का किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान का पद प्रायः हेरिडिटरी हो चुका था। आरंभिक तमिल संगम साहित्यों में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि विललार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर, दास, इसको अणिमई कहा गया, इन लोगों का उल्लेख है। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस। एक्चुअली ट्रेन की ये आवाज थोड़ा डिस्टर्ब करेगी आपको। तो मेरे कहने का सेंस ये था कि जो भूमि पे जो ओनरशिप थी, इसको भी लेके एक बड़ा डिफरेंसेस हमें दिखाई देता है। संगम लिटरेचर इस बात की विस्तार से चर्चा करते हैं और इनके आधार पे आप सोशल डिफरेंसेस को भी समझ सकते हैं। वेल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा, उलवर, अणिमई, दास, जिसका उल्लेख मैंने किया, संभव है कि इन वर्गों की जो ये डिफरेंसेस दिख रही हैं, इसके पीछे का कारण लैंड पे उनकी ओनरशिप रही होगी, जमीन पे उनका नियंत्रण रहा होगा। जिसके पास ज्यादा जमीन वो मजबूत स्थिति में, और जिनके पास कम जमीन वो ऑफकोर्स कमजोर स्थिति में, दासत्व की स्थिति में रहा होगा। हलवाहा, उलवर, दास, अणिमई, ये लोग जो थे, इस वर्ग की विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर आधारित थी। तीन चीजों पे, जमीन पे उनका स्वामित्व, उनके द्वारा किया गया श्रम और नई टेक्नोलॉजीज जो आई थी उनका प्रयोग कौन कितना करता है, इसके आधार पे भी ये नए नए वर्ग बने हुए। ऐसी परिस्थितियों में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती है। हमारे लीगल टेक्स्ट में इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट हाउ द रूरल सोसाइटी categorize without any agitation. First you have to understand that the rural society was categorized on the basis of land ownership, on the basis of use of the technologies, on the basis of their labor and some other social and economical factor also. It was separated in different I mean to say that कि पार्ट, छोटे छोटे भागों में उनको बांटा होगा। ये वो चीजें थी जिनके आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि पूरा साम्राज्य, पूरा समाज अलग अलग वर्गों में बटा होगा। अगर आप अपने बुक को माइन्यूटली रीड करें, अध्ययन करें, देखें, तो आपको इन सारी चीजों की जानकारी विस्तार से हो जाएगी। जैसे कहता है, while these technologies often led to an increase in production, the benefits were very uneven. What is evident is that there was growing differentiation amongst people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborers, small peasants, and well as in large landholders. The term Grahapati was often used in Pali text to designate the second and
third category is the large. So, my dear, what we studied here, हमने देखा कि किस तरह ग्रामीण समाज में कई सारे वर्ग बन चुके थे। आइए देखते हैं कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन का, उनके कैटेगराइजेशन का क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है, हम यहां सोसाइटी को बताते हैं। सोसाइटी कैटेगराइज हुई होगी किसके आधार पे? पहला, लैंड ओनरशिप पे, दूसरा लेबर पे, और तीसरा टेक्नोलॉजी पे। अब लैंड ओनरशिप जिसके पास ज्यादा नहीं होगी वो लोग क्या कह रहे होंगे? बिग पीजेंट। जमींदार, और साथ ही साथ तमिल लिटरेचर में इन्हें वेल्लार बोला गया। वेल्लास, तमिल लिटरेचर इनको क्या कहता है? वेल्लार कहता है। ये तो हुआ एक वर्ग हमारा, जिनके पास जमीन है। जो लेबर है इसमें कई कैटेगरी होगी। लैंडलेस लेबर, स्मॉल पीजेंट, वर्कर्स, और टेक्नोलॉजी जो बदली, जैसे प्लग शेयर, जैसे इरिगेशन मोड, जैसे सीड्स, कल्टीवेशन लिखिए तो ज्यादा बेटर है। कल्टीवेशन मेथड, यूज ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स, इनके आधार पे सोसाइटी कौन सी बनी? कहता है कि हमें सोसाइटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है बौद्धिस्ट टेक्स्ट मिलती है। बौद्धिस्ट टेक्स्ट, साथ ही साथ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आल्सो। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आल्सो एक्सप्लेन अबाउट सोसाइटी, बट अर्ली सोसाइटी में बौद्धिस्ट टेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है। और जो चीजों को बताती हैं, जैसे कुछ बातें आपके बुक में हैं, वेल्लार, वेल्लार, it means big pigeon। कहता है वेल्लार के बाद उल्लुअर,
प्लाउमैन, कहता है अनिमई, अडिमई, स्लेव। तो कहता है एटलीस्ट सोसाइटी में ये वर्ग रहे होंगे जिनका उल्लेख हमको, जिनकी सूचनाएं हमको कंटेम्प्रेरी बुक से, कंटेम्प्रेरी चीजों से मालूम चलती है। एक शब्द और उल्लेख किया है, गहपति। आइए गहपति के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन थे गहपति? गहपति शब्द को अगर आप संस्कृत में पढ़ें तो गृहपति, और गृह का मतलब है घर, घर का मुखिया, यही गहपति कहलाता था। गहपति वॉज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ हाउस होल्ड who exercised control over the women, children, slave and workers, who shared a common land. I mean to say that, who shared a common residence. He was also the owner of the resources, land, animal and other things that belong to the households. Sometimes the term was used as a market of status. I mean to say, marker of status of man belonging to the urban elites, including wealthy merchants. Sometimes Gahapati word marked, I mean to say that it was the marker to explain the elite class people and the wealthy peasants, wealthy merchants also. गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर उसका नियंत्रण रहता था। घर से जुड़े भूमि, लैंड, जानवर, एनिमल या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगर में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। हमने आपको ऊपर गहपति शब्द की व्याख्या की, बताया। हमने कहा कि गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए भी किया जाता था। इट मीन्स इट वॉज सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज दो टॉपिक कवर की, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अगली चीज़ों पे चर्चा करेंगे। टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा मनुस्मृति एंड लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। तो गुड बाय एंड टेक केयर।